Hello, parents and my dear students. Welcome to Adult School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4. Subject English Grammar. Chapter 1. Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write it in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. Okay students, now take out your books of English grammar and turn to page number 1. Okay, so here we have page number 1 of chapter number 1. Okay, so what is the chapter number 1? It is collective nouns. What it is? Collective nouns. क्या है वो? Collective noun. Okay, now let us learn about collective nouns. What are they and what are they about? We have learned about collective nouns for people and animals in the previous grades. Full stop. So here it is saying we have, हमने learned सीखा है about collective nouns, यानी collective nouns के बारे में for people लोगों के लिए and और animals जानवरों के लिए in the previous grades, यानी पिछले क्लास में. पिछली क्लास में हमने collective nouns animals के लिए और लोगों के लिए पढ़े हैं. In this chapter we will learn about collective nouns for objects. So here it is saying that in this chapter, इस chapter में we हम will learn पढ़ेंगे सीखेंगे about collective nouns के बारे में for objects, यानी वस्तुओं के लिए जो collective nouns होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now, comma, based on your previous knowledge, comma, do the following exercise. So here it is saying that now based on your previous knowledge, do the following exercise. Now अब based आधारित on योर प्रीवियस नॉलेज, तो आपके प्रीवियस नॉलेज के ऊपर आधारित, मतलब जो आपको पूर्व ज्ञान है, पहले का जो नॉलेज है आपका, उस पर आधारित डू करिए द फॉलोइंग, नीचे दी गई एक्सरसाइज. ओके, जो नीचे एक आपको एक्टिविटी दी गई है वो आपको करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. Read the sentences given below. So students, here you have to read, पढ़ना, the sentences, वाक्यों को, given, दिए गए, below, नीचे. तो आपको यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ना है, read करना है उन्हें. ओके, so let us start. चलो शुरू करते हैं. I gave my mom a bouquet. BOUQUET. It's called bouquet. क्या कहते हैं इसे? Bouquet. Bouquet of flowers for her birthday. Okay, so what he is saying? I, मैंने, gave, दिया, my mom, मेरी माँ को, a, एक, बुके, गुलदस्ता, ऑफ फ्लावर्स, फूलों का, फॉर हर, उनके, बर्थडे
यानी जन्मदिन के लिए। सो यहाँ वो कहता है कि मैंने अपनी माँ को एक गुलदस्ता दिया उनके जन्मदिन के लिए। डन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दीपा गॉट अ set, S-E-T, set of bowls, B-O-W-L-S, bowls, as a birthday gift. So here it is saying that Deepa got a set of bowls as a birthday gift. दीपा को got मिला एक सेट ऑफ बोल्स, कटोरों का एक सेट मिला दीपा को एज अ बर्थडे गिफ्ट, यानी जन्मदिन के उपहार के तौर में उसे एक कटोरे का सेट मिला। बोल्स एक्चुअली कटोरियों को कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ coming to the next paragraph. Look, L-O-O-K, look at the words bouquet of flowers and set of bowls, full stop. So here it is saying that look at the words bouquet of flowers and set of bowls. Look, देखिए, at the words यानी शब्दों की तरफ, जैसे कि bouquet of flowers यानी फूलों का गुलदस्ता, and और set of bowls यानी कटोरे का सेट। Now in the next paragraph they are saying they talk about a collection of things. यहाँ पर वो कहता है कि they talk about, वे talk बात करते हैं about a collection यानी एक कलेक्शन की बात करते हैं, एक कलेक्शन of things, वस्तुओं का संग्रह, यानी जब चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें संग्रहित किया जाता है, दैट इज नोन एज कलेक्शन। दीज वर्ड्स आर कलेक्टिव नाउन्स। सो हियर इट इज सेइंग दैट दीज, ये वर्ड्स, शब्द, आर, हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो ये जो है शब्द, उन्हें कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। कौन से नाउन्स कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन्स। ओके स्टूडेंट्स, बट they are usually treated as singular, S-I-N-G-U-L-A-R, singular nouns, full stop। तो यहाँ पर कहा गया है but, लेकिन, they are, वे, are, हैं, usually, अक्सर, treated यानी उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? एज सिंगुलर नाउन्स, उन्हें सिंगुलर नाउन समझा जाता है। एक वचन में जो नाउन्स एक वचन की संख्या, उन्हें माना जाता है। दैट इज वाई वी से दिस बंच ऑफ grapes was sweet and not this bunch of grapes were sweet, full stop। so students, यहाँ आपको बहुत सिंपल सी बात समझाई हुई है कि this bunch, ये गुच्छा, of grapes, अंगूर का, was sweet, sweet था, and और not, नहीं, this bunch, ये गुच्छा, of grapes were sweet, ये गुच्छा अंगूर का मीठे थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक नॉर्मल सी चीज़ समझाई गई है कि जब आप कलेक्टिव नाउन्स पढ़ते हैं तो ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, या आप कह दीजिए बुके ऑफ फ्लावर्स। तो वो एक बुके है,
उसमें फूल तो कई सारे हैं लेकिन वो गुलदस्ता एक ही है, तो उसे हम सिंगल ट्रीट करेंगे। सो वो सिंगुलर नाउन में आएगा। वो एक ही गुलदस्ता है। ओके स्टूडेंट्स, एक ही बुक है, एक ही गुलदस्ता है, सो उसे हम सिंगुलर नाउन में काउंट करेंगे। वो एक है, उसमें फ्लावर्स बहुत सारे हैं, ओके, बट वो गुलदस्ता तो एक ही बनता है। सो वी विल काउंट इट एज वन, उसे हम एक ही मानेंगे। उसी तरह यहाँ पर कहा गया है बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का गुच्छा। अब स्टूडेंट्स, उसमें अंगूर तो कई सारे होंगे उस गुच्छे में, बट वो पूरा एक ही गुच्छा है, ओके। सो उसे भी हम सिंगल नाउन ही मानेंगे, सिंगुलर नाउन उसे काउंट करेंगे। वो हमारे लिए एक है, एक गुच्छा है। किसका है? अंगूरों का। ग्रेप्स को आप प्लूरल लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पर बंच जो है वो सिंगल है, बंच एक ही है, गुच्छा एक ही है। तो अंगूर का गुच्छा कहिए या अंगूरों का गुच्छा, बट वो गुच्छा एक ही होगा। समझ गए स्टूडेंट्स? अच्छा, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें डेफिनेशन दे रखी है कलेक्टिव नाउन्स की। सो लेट अस रीड। कलेक्टिव नाउन्स आर words that talk about a group of things as one unit. Full stop. So here it is saying that collective nouns, जो ये collective nouns हैं, are words, ऐसे शब्द हैं that talk about, जो बात करते हैं, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, जो एक समूह की बात करते हैं। वस्तुओं का कोई समूह होता है, उसकी बात करते हैं, एक समूह। यानी जैसे आप कह लीजिए अंगूरों का गुच्छा, यानी इसमें अंगूर तो कई सारे हैं बट गुच्छा एक ही है। तो ऐसे शब्द जो कुछ ऐसी वस्तुओं की बात करते हैं जो समूह में है, जो ग्रुप में है, एज वन यूनिट, जिसे वो एक यूनिट मानते हैं, यानी एक ही वस्तु मानते हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों का गुच्छा, ये एक गुच्छा है, उसमें अंगूर चाहे कई सारे होंगे बट वो गुच्छा तो एक ही कहलाएगा। सो इट विल बी ट्रीटेड एज वन यूनिट, उसे हम वन यूनिट ही मानेंगे। दे आर यूजुअली ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन्स। तो यहाँ कहा गया है वे हैं यूजुअली, अक्सर, ट्रीटेड, यानी जिनके साथ व्यवहार किया जाता है, ट्रीट किया जाता है एज सिंगुलर नाउन, उन्हें हम सिंगुलर नाउन की तरह ही पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 2। टर्न द पेज। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उससे हम इसे और भी अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल्स: मॉम प्लेस्ड द chest of drawers near the window. Full stop. So यहाँ कहा गया है मॉम, माँ, प्लेस्ड, रखती हैं, द चेस्ट, यानी छाती, या आप जो भी समझे, ऑफ ड्रॉवर्स, यानी जो ड्रॉवर्स होते हैं, कबाट होते हैं, उनका जो चेस्ट होता है, चेस्ट वाला पार्ट, नियर द विंडो, खिड़की के पास। तो यहाँ पर कहते हैं द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। सो जो सारे ड्रॉवर्स हैं उन्हें एक माना गया है, सो वी विल कॉल इट चेस्ट, यानी सारे ड्रॉवर्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, चेस्ट, चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स नियर द विंडो, खिड़की के पास। नेक्स्ट सेंटेंसेस: अंकल टॉम बॉट अस अ basket of fruits. So here it is saying that Uncle Tom bought us a basket of fruit. Uncle Tom, जो अंकल हैं टॉम, bought, उन्होंने खरीदी, us, हमें, a, एक, basket, टोकरी, of fruits, फलों की। So यहाँ पर fruits के लिए basket of fruits यूज हो रहा है। ओके, सो यहाँ कहा गया कि अंकल टॉम ने हमें एक फलों की टोकरी खरीद कर दी। ओके, सो हियर इन बोथ एग्जाम्पल्स द
collective nouns chest and basket are in the singular form. Full stop. So यहाँ आपसे कहा गया है in both the examples the collective nouns chest and basket are in the singular form. In both, दोनों ही the examples, उदाहरण में the collective nouns, जो collective nouns है chest and और basket are in singular form. यहाँ पर देखिए chest और basket दोनों ही अपने सिंगुलर फॉर्म है, इनके पीछे कोई एस नहीं लग रहा है या इनके वर्ड के फॉर्मेशन में कोई भी चेंज नहीं है, ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है. ओके, सो ये अपने प्लूरल फॉर्म में नहीं है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, इनके पीछे कोई एस या ई एस नहीं लगा है, ये कोई प्लूरल नहीं है. बट दे टॉक अबाउट द प्लूरल नाउन्स ड्रॉवर्स and fruits respectively as one unit. So यहाँ कहा गया but they talk about the plural nouns drawers and fruits respectively as one unit. But लेकिन वे talk बात करते हैं about the plural यानी बहुवचन के बारे में, nouns यानी संज्ञा, ड्रॉवर्स कबाट एंड और फ्रूट्स फलों के बारे में, रिस्पेक्टिवली आदर से, एज वन यूनिट यानी उन्हें एक माना गया है. यहाँ पर आप देखिए ड्रॉवर्स एक हिसाब से कई सारे जब कबाट होते हैं तो उन्हें ड्रॉवर्स कहा जाता है, और फ्रूट्स कई सारे जब फल होते हैं उन्हें फ्रूट्स कहा जाता है. उनके पीछे एस लगा हुआ है, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इनके पीछे एस लगा हुआ है, यानी ये दोनों अपने प्लूरल फॉर्म में है. लेकिन जब इनके साथ अ चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स लग गया, यानी जो कबाट का चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स, तो ये एक यूनिट हो गया, वो एक वस्तु हो गई. जब कहा जाएगा अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स यानी फलों की टोकरी, उस टोकरी में चाहे कितने ही फल हो लेकिन वो टोकरी तो एक ही काउंट होगी ना, तो यहाँ पर वो सिंगुलर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, फ्रूट सिंगुलर नहीं होगा, ना ही ड्रॉवर्स सिंगुलर होगा. सिंगुलर क्या होगा? चेस्ट और बास्केट जो उससे जुड़े हुए हैं. ओके, नाउ लेट अस सी the table below us. Okay, the table below lists some of the most frequently used collective nouns for objects. Full stop. The table below lists some of the most frequently used collective नाउन्स फॉर ऑब्जेक्ट्स. सो यहाँ कहा गया द टेबल, नीचे जो टेबल है, बिलो नीचे, लिस्ट बताती है, एनलिस्ट करती है, सम ऑफ द मोस्ट कुछ ऐसे, मोस्ट ज़्यादातर, फ्रीक्वेंटली दोहराए जाने वाले, यूज्ड इस्तेमाल किए जाने वाले, कलेक्टिव नाउन्स फॉर ऑब्जेक्ट्स. यानी यहाँ कहा गया कि नीचे कुछ ऐसे आपको कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं जो हम अक्सर दोहराते हैं, ओके, या यूज में लेते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर दे. चलिए देखते हैं कि क्या है वो कलेक्टिव नाउन्स. फर्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. व्हाट इट इज? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी द्वीपों का समूह, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. नेक्स्ट इज अ कॉन्स्टेलेशन और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. ओके, कॉन्स्टेलेशन और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. नेक्स्ट उसके बाद है अ वेट ऑफ नोट्स, अ वेट ऑफ नोट्स. देन अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज. नेक्स्ट इज अ फ्लीट ऑफ शिप्स. व्हाट इट इज? अ फ्लीट ऑफ शिप्स. स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड इट अलोंग, आपको ये मेरे साथ साथ पढ़ना है. अ fleet of ships. Next, a string of pearls. Students repeat, a string of pearls. Next, a collection of stamps. Repeat students, a
collection of stamps. Next is a block of flats. Repeat with me, students. A block of flats. Next is a batch of bread. Repeat it, students. A batch of bread. Next, a book of exercises. Repeat it. A book of exercises. A shelf of books. Repeat, students. A shelf of books. Next is a clump of trees. A clump of trees. Okay, now moving towards the next side of this. Okay, let us start it again. A basket of fruits. Repeat it, students. A basket of fruits. Our next noun is a pack of cards. A pack of cards. Students, repeat it. A pack of cards. Next is a pair of shoes. Repeat it, students. A pair of shoes. Then a bouquet of flowers. A bouquet of flowers. Then a cloud of dust. Students, repeat it. A cloud of dust. Next is an album of photos. An album of photographs. Students, repeat it. An album of photographs. Then a hedge of bushes. A hedge of bushes. Then an anthology of poems. An anthology of poems. Repeat it, students. A-N-T-H-O, antho, L-O-G-Y, logy. An anthology of poems. A garland of flowers. A garland of flowers. Next is a bale of cotton. Repeat it. A bale of cotton. Then a set of teeth. A set of teeth. Next is a collection of coins. Students, repeat this. A collection of coins. Okay, students, so we are done with this. Now, in homework, you have to repeat this table, read aloud and repeat it and try to learn it. Students, आपको homework में ये table learn करना है और recite करना है, घर पे दोहराना है बार बार, ताकि इनमें से most of आपको nouns, collective nouns याद हो जाएं. Okay, students, I hope you like the video. Thank you for watching.